Hello, learner. So let's come to socio-emotional development during the early years, during the first year. Yeah, somebody also asked me if I can keep the slides for a longer time. So I want to inform you that all the slides will be available to you on eGyan Kosh. Not right away. As we finish one course, I will send the slides for that course to be uploaded on eGyan Kosh. So if we finish DEC 1 by end of December, all these slides I will request to be uploaded on eGyan Kosh and you can see them there. So you don't have to have the tension of clicking on the screenshot right away. You just try and understand at this point. Let's come now to socio-emotional development. How is it, we are going to see that how is it that during the first year, the child and the mother form such a close attachment with each other. We know that the child is very attached to the mother because the mother is the primary caregiver who looks after the child. If it is not the mother and somebody else has been looking after the child, then the child will get attached to that person. Now, how is it that this bond of affection develops between them? So there are some very specific behaviors that we as caregivers do, and there are some very specific abilities and behaviors which the infant has, which help in the development of this bond. So for example, what is it that we do? We keep a lot of physical contact with the child. As it is, a lot of time is you're changing the baby, you're feeding the baby, you're bathing the baby. Apart from that, we also want to just hold the baby for the love of holding the baby. So there is a lot of physical contact that is there between the mother and the child. Then, whether or not the baby responds, the mother is always talking. You're always saying something or the other to the little baby. Look at this, come here, oh, what a sweet child and all, anything. Did you sleep? Are you, oh, you are hungry, anything like that. We smile. Whenever we look at the infant, we are always smiling at the infant. We make a lot of exaggerated facial expressions when talking with the child. Normally our eyes or hands, we may not move so much, but when we are with the child, we make specially our eyebrows will be raised, or we will, widen our eyes, or we will smile in a more elaborate way. So all of this catches the attention of the child. And we gaze. I think gazing is, you would see like, when two people are in love, they look at each other. So the mother and the infant often keep looking at each other. And this gazing, just simply looking at the baby, helps in the formation of the emotional bond between the mother and the baby. What is it that the infant can do? So this is what we do. Is the bond only formed from one side? No. The other person has to also do something. We may think, what is it that the infant can do? So let us see what the infant does. The infant also gazes back at the mother. When the mother looks at the baby also holds the gaze and continues to look back. When the infant is happy, the infant smiles. And the mother gets a reinforcement, oh, I'm such a good mother, see the baby is smiling. Which further makes the mother do more things for the baby and the bond between them develops. A little later, as you know, by 6 months, the baby will start to babble. The baby also starts to imitate little actions. And that further creates a dialogue. Any bond is formed when there is a two-way process. The infant cannot actually say something, but dialogue does not only require words. The infant is giving a response in the form of babbling. And that dialogue begins to create this bond of affection between the mother and the baby. Now, here, what I would like to tell you is that this bond of affection between the mother and the baby is not only because the mother is feeding the baby. This is a very important point that we must understand. Just because माँ बच्चे को ध्यान दे रही है, उसको दूध पिला रही है, उसको नहला रही है, डायपर चेंज कर रही है, इस फिजिकल कार्य की वजह से माँ और बच्चे के बीच में लगाव नहीं होता है. माँ और बच्चे के बीच में लगाव होता है
क्योंकि माँ उसको एक भावात्मक सुरक्षा और एक इमोशनल नर्चरेंस दे रही है, जिसके कारण होता है। और इमोशनल नर्चरेंस कैसे होता है? जैसे मैंने अभी बताया, गेज करने से, एक दूसरे को देखने से, स्माइल करने से, माँ की बातचीत से, बच्चे की अनुक्रिया से। तो ये कारण है माँ और बच्चे के बीच में लगाव का। बहुत सुंदर एक एक्सपेरिमेंट किया विदेशी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर लेके बंदरों के साथ। उन्होंने क्या किया कि एक छोटा बेबी बंदर लिया और लेबोरेटरी में एक मदर मंकी जैसा स्ट्रक्चर बनाया। एक मदर मंकी तो के पास फीडिंग बॉटल थी, परंतु उसकी फीडिंग बॉटल के अलावा उसका जो शरीर उन्होंने बनाया वो उन्होंने केवल वायर से बनाया। तो अगर आप समझ सके, फीडिंग बॉटल है उस मदर मंकी में, परंतु शरीर जो है वायर से बना है। एक दूसरी मंकी बनाई, मदर मंकी, जिसके पास कोई फीडिंग बॉटल तो नहीं थी, परंतु उसका जो शरीर बनाया वो उन्होंने नरम रुई के कपड़े, फोम, ताकि उसको चिपक सके तो उसको एक गरमाइश की एहसास हो, उसका बनाया। तो उन्होंने ये देखा कि जब तो बेबी मंकी को भूख लगती थी तब तो वो उस नुकीली वायर वाली मदर के पास जाके बोतल से दूध पी लेता था, परंतु जब उस बेबी मंकी को केवल कुछ आराम की जरूरत होती थी या जब वो कुछ खुशी में होता था, तो वो आके ये दूसरी माँ जिसके पास दूध वाला बोतल नहीं थी, पर जिसके पास के आसपास के जो बॉडी थी वो सॉफ्ट नरम कपड़े की बनी थी, उसके साथ आके वो चिपकता था। तो उन्होंने इससे ये दर्शाया कि माँ और बच्चे के बीच में संबंध केवल दूध पिलाने की प्रक्रिया के कारण या उसकी फिजिकल केयर के कारण नहीं होता है। तो माँ और बच्चे के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये जन्म के कुछ ही घंटों बाद बनने लग जाता है। और ये जो अटैचमेंट है, ये माँ और बच्चे का जो अटैचमेंट है, ये भविष्य में बच्चा जो भी अटैचमेंट बनाएगा उसका एक किस्म से ये प्रारूप है, ये उसका बेसिस है, हम ये कह सकते हैं। अगर माँ का बच्चे से लगाव अच्छा बन जाता है तो बच्चे को ये एहसास होता है कि मेरी आसपास की जो दुनिया है वो विश्वसनीय है, उसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, मुझे भरोसा है। और अगर माँ और बच्चे के बीच का लगाव जो है वो इस प्रकार का नहीं बन पाता है तो बच्चे को अविश्वास की भावना, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रस्ट कहेंगे या अविश्वास यानी मिसट्रस्ट कहेंगे, की भावना डेवलप होती है। और ये जो एक फीलिंग है ये उम्र भर रहती है। तो हमें ये लगता नहीं है, हम एज एडल्ट्स, हम में से कई लोग हैं जो बहुत आसानी से दूसरों के साथ एक अटैचमेंट या एक भरोसे की फीलिंग बना पाते हैं। हम में से कुछ और लोग हैं जो अक्सर उनका नजरिया दूसरों को देखने का शक का होता है। तो हो सकता है इसकी कहीं बुनियाद जो है हमारे बचपन के अनुभवों से रिलेटेड हो। 1-to-1 कुछ चीज इस तरीके से कहना साइकोलॉजी में हमेशा मुश्किल होता है, पर लॉन्ग टर्म रिसर्च से ऐसा पता चला है कि जो माँ और बच्चे के बीच का पहला संबंध है, ये उसके बाकी आने वाले संबंधों के ऊपर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए इस समय ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चे की सभी जरूरतों को जब वो व्यक्त करे उसे पूरा करें। अगर बच्चा रो रहा है तो ये कि हम 15 मिनट बाद आ रहा है, भूख लग रही है तो उसको आधे घंटे बाद अटेंड किया जा रहा है। तो इससे जो बच्चे को जो आप मैसेज दे रहे हैं वो ये है कि एनवायरनमेंट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट यू। ऑब्वियसली इफ दिस थिंग हैपेंस अगेन एंड अगेन, अगर ये चीज बार बार होती है तो बच्चे को सुरक्षात्मकता के एहसास, ट्रस्ट के एहसास के बदले में बेविश्वासी या डिसट्रस्ट का एहसास होता है। इस स्लाइड पे जो और बातें थी वो मैं लगभग थोड़ा सा बोल चुकी हूं, फिर भी आप देखें। अटैचमेंट इज अ 2-वे प्रोसेस और दोनों बिहेवियर ऑफ द इन्फेंट और केयर गिवर कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स इट। हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फेंट अटैच्ड है किसी केयर गिवर से इस तरह से कि वो बार बार उस केयर गिवर के पास जाना चाहेगा, उसका अफेक्शन या अप्रूवल चाहे, कुछ काम करके उसकी तरफ देखना,
कि वो मुस्कुराया कि नहीं, कुछ उसने कहा तो नहीं। दुखी होने पे उसी व्यक्ति के पास जाने के लिए प्रेफर करना और उनसे बिछड़ने पे रोना, ये सब तरीके हैं जो हमें बताएंगे कि माँ और बच्चे या किसी व्यक्ति और बच्चे के बीच में लगाव स्थापित हुआ है कि नहीं। अ सिक्योर इन्फेंट, सिक्योर मतलब जिसका लगाव माँ और बच्चे का अच्छी तरह हो चुका है, उसके क्या लक्षण हमें नजर आएंगे? वो ज्यादा स्माइल करेगा, रोएगा कम और एक्सप्लोर, रेडी टू एक्सप्लोर। अब हमने पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये बात किया था कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे का होता है क्योंकि बच्चा अपने आसपास की हर चीज को टटोल के, इस तरह को देख के एक्सप्लोर करता है। अब एक्सप्लोर कौन सा बच्चा करेगा? एक्सप्लोर वो बच्चा करेगा, अपनी मां से दूर कौन सा बच्चा जाएगा? वो बच्चा जाएगा जिसको ये आश्वासन होगा कि अगर मैं थोड़ी दूर जाऊंगा और किसी मुश्किल में फंस जाऊंगा तो मेरी मां है जो मुझे आके संभाल लेगी। और जो बच्चा इस बात से आश्वस्त नहीं होगा कि मेरे को आके कोई संभाल लेगा, वो मां से चिपक कर ही रहेगा। तो अगर कई बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा माता को छोड़ते नहीं हैं, तो उसमें हमें ये कुछ एक इंडिकेशन मिल सकता है कि शायद उनका जो लगाव है माता के साथ वो शायद उतना सॉलिड तरीके से नहीं बना हुआ है जितना कि उन बच्चों का जो माँ को छोड़ के कुछ और अन्वेषण कर सकते हैं। और अन्वेषण करना क्यों जरूरी है इस समय? क्योंकि बच्चा आसपास जाके चीजों को छुएगा, टटोलेगा, हाथ में देखेगा, तभी ही उसकी बुद्धि का आगे विकास होगा। हम एडल्ट्स इस चीज को एक मुसीबत मान लेते हैं कि हे भगवान, अब तो हर जगह पे ये क्रॉल करने लगा है, हर जगह जाएगा, ये सामान भी गिरेगा, ये सामान भी। हम डांटते हैं, वो हमारी गलती है क्योंकि हम डांटने से एक तो उसकी अन्वेषण करने, एक्सप्लोर करने की इच्छा को दबा रहे हैं और दूसरा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक तरीके से हम हनन कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपको आपके स्कूल में या आपके कार्यस्थल में जहां पे भी आप हैं या आप जहां पे भी घर पे हैं, अगर हर कोई आपको ना ना ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, ये मत करो, इस तरीके से अगर आपको हमेशा फीडबैक अपने काम का मिलता रहेगा तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? उसी तरीके से अगर हम बच्चे को हर वक्त एक रोक टोक के नजरिए से ही काम करने देंगे, उसको ये मत छुओ, वो मत करो, वो गिर जाएगा, ये यहां रख दो, तुमने बिगाड़ दिया, ये नीचे गिर गई, ये सब करके अगर हम बच्चे से बातचीत करेंगे तो हम स्वयं सोचे कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरफ हम ले जा रहे हैं। मां के इस प्रारंभिक लगाव के बाद बच्चा अन्य लोगों से भी लगाव बनाता है, अटैचमेंट विद द फादर, दूसरे और सिबलिंग्स। उनको 2 नंबर पे इसलिए बोला है क्योंकि लगता है कि अक्सर घरों में वो लोग इतना समय बच्चे के साथ नहीं दे पाते, परंतु जैसे जैसे आगे आगे लोग उसके साथ और इंटरेक्ट करते हैं, वो इन लोगों से भी लगाव स्थापित करता है। और जैसा कि मैं बोल ही चुकी हूं, आगे के सारी स्लाइड्स का बता चुकी हूं कि बच्चे का ये सारा लगाव अलग अलग चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, इंक्लूडिंग लेटर रिलेशनशिप्स, इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, इंक्लूडिंग higher self-esteem and lower aggressive behavior during preschool years. इस समय बच्चे की भावात्मक एक्सप्रेशंस हम क्या देख सकते हैं? इमोशनल एक्सप्रेशंस। यूजुअली इस समय के बच्चे के इमोशनल एक्सप्रेशंस को 2 में कैटेगराइज किया गया है, डिलाइट एंड डिस्ट्रेस। डिलाइट बच्चा दिखाता है बाय स्माइलिंग एंड लाफिंग और डिस्ट्रेस दिखाता है बाय क्राइंग, गुस्सा, स्ट्रेंजर एंजाइटी एंड सेपरेशन एंजाइटी। इन 2 वर्ड्स को थोड़ा देख लें। स्ट्रेंजर एंजाइटी मतलब लगभग आप देखेंगे 4-5 महीने का बच्चा हर एक की गोदी में जाने को तैयार है। 6-7 महीने का बच्चा एकदम अचानक, कल तक तो जाता था सबकी गोदी में, आज जाना बंद कर दिया है। इस चीज को कहते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी। बच्चे का दूसरों के गोदी में जाना बंद करना, वंस अगेन हम इस बात से बड़े इरिटेटेड हो जाते हैं और अक्सर कहते हैं अरे कल तक तो ये बहुत फ्रेंडली था, आज देखो बच्चे को क्या हो गया। एक्चुअली हमें खुश होना चाहिए। खुश क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेंजर एंजाइटी बच्चे के बढ़ती हुई दिमाग और बुद्धि को दर्शा रहा है। यानी अब उसका जो दिमाग है उसमें वो फेमिलियर और अनफेमिलियर फेसेस का रिकॉर्ड रख पा रहा है, और सामने अगर उसके अनफेमिलियर फेस आया है तो एक्चुअली अपनी मेमोरी से ये देख रहा है ये फेस मेरे को कहीं पे मैंने देखा है कि नहीं। द चाइल्ड इज एक्चुअली यूजिंग हर माइंड टू सी डू आई हैव अ मेमोरी ऑफ दिस फेस। So actually not going to another person is a sign of the child's increasing cognitive development. It is nothing to worry about. It is something which fades away by its own by around 1.5 years of age.
बट हम एडल्ट लोग जो है हम पेशेंट ही नहीं होते हैं, और आप मेरे से सहमत होंगे, इतने छोटी उम्र से ही हम बच्चों को लेबल देना शुरू कर देते हैं, ये तो शर्मीला है, ये तो ऐसा है, जो मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। इसी प्रकार सेपरेशन एंजाइटी यानी अपने जिनसे उसको लगाव, अटैचमेंट का बॉन्ड बन गया है, उनसे बिछुड़ने पे रोता है। तो अब वो मां को छोड़ के नहीं जाना चाहता है, तो भले ही कोई स्ट्रेंजर हो या ना हो, परंतु अगर कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी लगती है कि मां जो है उसको छोड़ के जाने वाली है, तो उसको उस समय वो बच्चा रोने लगता है। सो वंस अगेन ये 1.5 साल की उम्र पे ज्यादा होती है और फिर लगभग 2 साल की उम्र तक चली जाती है। बच्चे के सामाजिक भावात्मक विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल है। अभी जब मैंने बात करी कि माँ ने किस प्रकार का बच्चे को लालन पालन दिया, उस पे डिपेंड करेगा बच्चे का लगाव कैसा है, ये तो एनवायरनमेंट की बात हो गई। परंतु हेरिडिटी का इफेक्ट कहां पे आएगा? कुछ बच्चे टेम्परामेंटली ही ऐसे होते हैं जो ज्यादा रोते हैं, कुछ बच्चे टेम्परामेंटली ही ऐसे होते हैं जो ज्यादा हंसते हैं या ज्यादा इजीली वो खुश हो जाते हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि दोनों बच्चों के प्रति एडल्ट्स का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो बच्चा इजियर टू प्लीज है, शायद उसके साथ ज्यादा लोग इंटरेक्ट करेंगे, तो उसका सोशल डेवलपमेंट एक अलग तरीके से होगा। एक बच्चा जो ज्यादा इरिटेबल है, ज्यादा क्राइंग में रहता है, तो शायद आसपास के लोगों को भी यही टेंशन में रहेगी कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे ये फिर रो पड़े, तो हमारे उसके साथ के इंटरेक्शंस अलग किस्म के होंगे। तो हम ये देख ही रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे का अपना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है दोनों साथ साथ लेके ही विकास को आगे बढ़ाता है। परंतु ये कहने के बाद the message of our course, the message of this entire diploma program is that हेरिडिटी के बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो हमारे सामने बच्चा है, आप स्कूल में टीचर हैं आप लोग, या क्रैश में काम कर रहे हैं, या इवन घर में माता पिता हैं, बच्चा जो अब पैदा हो गया जिस हेरिडिटी के साथ, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। परंतु हम उसे क्या एनवायरनमेंट देते हैं, ये टोटली हमारे हाथ में है। इसलिए हमारे जो इस कोर्स को पढ़ने के बाद मान लो आपको कुछ लर्निंग्स लगती हैं, तो वो इस डायरेक्शन में जाएं कि बच्चों को शुरू के प्रारंभिक वर्षों में, जन्म से लेकर 6 वर्ष के वर्षों में, हम किस प्रकार ऐसा माहौल दे सकते हैं कि उनका कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, सोशल और लैंग्वेज विकास जो है वो अपनी चरम सीमा पे ऑप्टिमल उस पे हो सके। और लास्ट का पॉइंट हमारा स्लाइड का ये बता रहा है कि देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जिससे हमारा मतलब है कि विकास के ये सभी क्षेत्रों के बारे में हम बात तो अलग अलग कर रहे हैं, परंतु ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो बच्चे को अगर भावात्मक सुरक्षा मिलेगी, अगर लगाव मिलेगा, तो वो अन्वेषण करेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा, संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा तो उसके भाषा पे प्रभाव पड़ेगा। तो सभी कुछ जो है वो इंटर रिलेटेड है। बच्चे का संपूर्ण रूप से ध्यान देना बहुत आवश्यक है। केवल खाना पिलाना या टीके लगवाना या स्वास्थ्य के प्रति ही उसका ध्यान देना इनफ नहीं है। यही मैसेज है हमारे मोटा मोटा इस यूनिट्स का।